Hello, good evening and regards. My name is Dr. Ranan. Is my voice audible to everyone? Please let me know. Thank you so much. Good evening to all the amazing people. Yesterday we had a class regarding neonatal resuscitation. I hope, is my voice coming to everyone? Good evening, everyone. Thank you. So yesterday class we spoke about neonatal resuscitation. Good evening and regards to everyone. Is my voice coming? Good evening, Karan. Good evening, Faraz, Priya. Good evening, everyone. I hope my voice is coming to everyone. Thank you so much. Good evening, Shubham. So, what do you think? What is the ideal temperature of labor room? Neha Bhatia, good evening. Farhaz, Karun, Riya. Today we are starting the first day of pediatrics, and I'll be addressing every single student who is there online. So, kuch bhi doubt ho, anything is there, please put a comment section, any message. Thank you so much. So, yes, that's right. The ideal temperature of labor room is 25 to 28 degrees Celsius. Yes, आज से हम start करेंगे growth and development. Today we are starting the topic of growth and development. The beginning few pages we're going to cover in today's evening class. This segment will be spoken in English and Hindi language both, and बहुत अच्छे से हो जाएगा. It will be wonderful. Any doubt anyone has can ask in the comment section. Anytime we have a like I'll be watching your comments time to time. कुछ भी होता है, anything which is there, you please ask in the comment section. And कल की class को लेके भी, if anyone has any query, they can mention here. So what do you think if the heart rate of a baby, if I ask you a random question, if heart rate of a baby is less than 100, what will you do? What do you think? Yes, you can ask, you tell in the comment. Very good, very good. Yes, that's a beautiful answer told by our Harsh. Yes, बिल्कुल सही बात है. If the heart rate of a baby is less than 100, definitely you do bag and mask ventilation. That's very true. And what is the absolute contraindication of bag and mask ventilation? In which condition we don't do bag and mask ventilation? Very good. That's very right. In a case of congenital diaphragmatic hernia, bag and mask ventilation is contraindicated. That's right. Very good. Good evening, everyone. I would like to say thank you so much for the participation. Thank you so much for learning pediatrics. And today is the first day we're going to start this session with very basic instincts, basic terminologies, growth and development. We'll be starting the segment. If I ask you a last question, if the baby's heart rate is less than 60, if a baby's heart rate is less than 60, then what will you do? क्या करेंगे अगर heart rate less than 60 होगा? Very good. What do you think? Very true. So if the heart rate is less than 60 of a baby, we'll start chest compressions and mag and mask ventilation. Exactly. Yes, Shruti Gupta, your comments I can see. So और क्या चाहिए? I can see very clearly your comments and everything. Like Natasha, Shruti, Devruti Chakravarti, Shubham Yogi, सबके मुझे बहुत अच्छे से comments नजर आ रहे हैं. तो कोई tension नहीं है. कुछ भी हो, you ask in the comment. Thank you so much. We're gonna start the proper segment exactly at 5 o'clock. So please take care and thank you. Good morning everyone. Good evening everyone. Good night everyone. Good morning. Hello जी, hello. हाँ जी, आ रहे भाई सब सारे मेरे. Very good. Thank you. बैठिए, please have a seat. Please have a seat. Thank you. So yes, let's start off this beautiful class. My name is Dr. Anand and today is day 1 of pediatrics. आज हम beginning pages को discuss करेंगे. This session will be spoken in English and Hindi language. The only thought process of this class is that whatever we are reading for the first and last time. ऐसे पढ़ना है कि बस पहली और आखिरी बार हो रहा है. अगर वर्कबुक ये वाली हमारी हो या ना हो, दिमाग में अच्छे से याद होना चाहिए. 25,000 बार हम रिवाइज करेंगे. I'll be asking you a lot of questions multiple times. Just try to participate as much as possible. गलत होए सही होए really doesn't matter. What matters is कि आपने participate किया, and the more you participate, the more very very high chances you have that you will get a rank 1. बस कोशिश करना है participate करने का और कुछ भी नहीं. ठीक है. चलो आगे शुरू करते हैं. Yes, तो ये है हमारा page 1. We are starting with the page 1 and we have the online students also. ऑनलाइन स्टूडेंट्स का भैया आई थिंक यहाँ पे सारा आ जाएगा. ठीक है. गुड इवनिंग टू ऑल दी वर्चुअल पीपल. माय नेम इज डॉक्टर आनंद. विल स्टार्ट ऑफ विद दिस क्लास and I'm just double checking whether everything is working well. Yes, perfectly fine. Okay, great. So the today's topic of choice is a very beautiful class. Please have your very positive vibes in the class. आज का topic of choice हमारा कहता है growth and development. Today's topic of choice is growth and development. And before starting any segment, we always have a quote. हमेशा क्लास से पहले एक छोटा सा quote रहेगा. आज का quote क्या कहता है? Today's
quote says, work until you feel Dubai is cheap. Work until you feel Dubai is cheap. We all are working hard. You all have come so far from home. 8 to 8 क्लास, so many सरप्राइज टेस्ट, इतनी बेइज्जती कैसे होगा आगे? तो होना तो है, करना तो है ही, बट दैट्स व्हाट वर्क अंटिल यू फील दुबई इज चीप. एवरीवन हैज अ ड्रीम कि मैं ऐसी शॉपिंग करूं कि मुझे मेरा बैंक बैलेंस ना देखना पड़े कि मेरे अकाउंट में पैसे कितने हैं. मैं कोई भी ज़ारा की शर्ट लूं तो देखना ना पड़े कि भाई मेरे पास पैसे कितने हैं, उस हिसाब से आज मैं शॉपिंग करूंगा. तो एक दिन ऐसा हम सब जिंदगी में चाहते हैं. दिस डे एवरी वन ऑफ अस वांट्स टू विटनेस that I no longer have to see my bank account. I just whatever my mom dad wants, they should get it. I remember when I got after my rank, when I got the job, my dad told ke he wants to go for shopping, and then I took him to Adidas or some Nike. तो उनको एक ट्रैक पैंट पसंद आया, मतलब the pair of a track pant, तो वो 11,000 रुपए का था. Then my mom is like, are you crazy? This 11,000 is so expensive. So my father said that, oh, I am proud of him. He is earning very well. No problem. I will buy. So मैंने कहा पापा yes yes buy no problem. And उस एक्साइटमेंट में my father bought 2 pair of track pants. एक 11,000 का, एक 11,000 का, 22,000 रुपए के मेरे पापा जो है 2 जोड़े ट्रैक पैंट लेके आए. तो वो एक्साइटमेंट के मारे उन्होंने 2 जोड़े ले लिए. बट आई वाज हैप्पी, ही वाज हैप्पी दैट वी आर अर्निंग वेल. सो ये सबको होना चाहिए, सबको अच्छा लगता है ये दिन. और उसके लिए करें क्या? क्या जादुई गुट्टी पी जाएं, जन्म गुट्टी पिए, क्या पिए ऐसा? तो बेसिकली नॉलेज को आपको लेना होगा. एक बड़ा अच्छा सा कहावत है, कहते हैं knowledge is one time investment. Knowledge is one time investment which will give you lifetime returns. हम इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में, फिक्स डिपॉजिट में, रिकरेंट डिपॉजिट में, वो हमको बाद में रिटर्न देता है. सो दिस ऑल्सो नॉलेज इज वन टाइम, इट्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट विच विल गिव यू लाइफ टाइम रिटर्न्स. सो एमडी में आई स्टार्टेड स्टडिंग पीडियाट्रिक्स एंड फ्रॉम दैट टाइम टिल टुडे एंड फॉर एवर it is giving me returns and returns, and same goes for you also. So the first topic of choice we have is growth and development. सबसे पहला एक सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पे ये आता है that what is the meaning of pediatrics? Pediatrics का मतलब क्या होता है? What is the meaning of pediatrics? Please write. Number 1, pedia means child and iatrics means healer. Pedia means child and iatrics means healer. So first point यहाँ पे ये आता है that the meaning of pediatrics is nothing but child healer. Pedia means child and iatrics means healer. Next question we have, कितने साल के बच्चे हम pediatrics में cover करते हैं? Till what age group we cover in pediatrics? The answer is very good my dear, 18 years. 0 to 18 years. 18 साल तक के बच्चे हम peds में cover करते हैं. 0 to 18 years of life we cover in the pediatrics. And मालाकार जो online का इधर आएगा ना, सबका बताते रहना मैसेज आए तो, ठीक है. So let's revise again. What is the Greek meaning of pediatrics? Child healer. Which age group till what we cover in pediatrics? Till 18 years. Very good. Whenever the mother is pregnant, जब भी मम्मी pregnant होती है तो 3 प्रकार के phase होते हैं. There are 3 types of phases she go through. One is prenatal, natal and postnatal phase. तो when the mother is pregnant, she has a baby inside her, जिसको हम कह सकते हैं ovum, then embryo, then fetus. And once the baby comes out, तब ये बच्चे को हम ये सारी definitions के बारे में बच्चा जाना जाता है. So whenever the mother is pregnant, there are 3 exam questions they ask in paper. What is ovum, what is embryo, and what is fetus? So please remember 0 to 2 weeks. 0 to 2 weeks of gestation. 0 to 2 weeks of gestation is known as ovum. 3 to 8 weeks. 3 to 8 weeks of gestation is known as embryo, and 9 weeks till birth. 9 weeks till birth is known as fetus. So ये 3 हमको चीजें पता होनी चाहिए. Very very importantly, please remember that. So I'll repeat again. We have 0 to 2 weeks. That is nothing but very importantly ovum. Then 3 to 8 weeks is known as embryo, and 9 weeks till birth. 9 weeks till birth is known as fetus. Okay. Now very importantly, एक बार मेरे साथ revise करते हैं. We'll say it again. So what is ovum? Ovum is 0 to 2 weeks. What is embryo? 3 to 8 weeks. What is fetus? 9 weeks till birth is known as fetus. Perfect answer. बहुत बढ़िया. Perinatal period क्या होता है? What is perinatal period? ये भी latest पूछते हैं. Perinatal period means when the mother is pregnant from 22 weeks of gestation. From 22 weeks of gestation
भैया बच्चों के कमेंट्स है ना, नजर नहीं आ रहे इसके अंदर, तो देख लो एक बार। टू 7 days आफ्टर बर्थ, 22 weeks of gestation to 7 days after birth means when the mother is pregnant, 22 weeks she is pregnant, 22 weeks is her gestation and full when the baby is born, and 7 days after birth वो पूरा का पूरा पीरियड उसको क्या बोलते हैं, पेरीनेटल पीरियड। बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट, अब बेबी आ गया बाहर, नाउ द बेबी इज आउट, सो वी हैव थ्री वेरी ब्यूटीफुल थिंग। जो बच्चा बाहर आता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं नियोनेट, हम उसको नियोनेट कहते हैं, वी कॉल इट एज अ नियोनेट। सो हाउ मेनी डेज डू यू कॉल इट अ नियोनेट? द आंसर इज 28 days, 0 to 28 days। शुरू के 28 दिन का बच्चा, 0 to 28 days of the newborn baby, जब बच्चा बाहर आता है तो शुरू का 28 दिन को वो नियोनेट कहलाते हैं उसको। एंड दैट नियोनेट इज डिवाइडेड इनटू अर्ली एंड लेट नियोनेट। सो जो शुरू के 7 दिन का बच्चा होता है, 0 to 7 days ऑफ लाइफ, उसको बोलेंगे अर्ली नियोनेट। एंड व्हाट इज लेट नियोनेट? 7 to 28 days ऑफ लाइफ। वेरी गुड, जितना बोल बोल के पढ़ेंगे ना उतना अच्छा है। देखो यहाँ पे अब मुझे इंप्रेस तो करनी नहीं है, मेरी तो शादी हो चुकी है, ठीक है। सो बेसिकली वी आर, यू आर नॉट हियर टू इम्प्रेस मी बिकॉज आई एम ऑलरेडी मैरिड, यू आर हियर टू इम्प्रेस योर सेल्फ, यू आर हियर टू इम्प्रेस योर फर्दर फ्यूचर लाइफ। तो अपने लिए पढ़ें, अपने लिए। मैं जिम जाता हूँ अपने लिए जाता हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ। सो नींद भी आएगी, पापा मम्मी की याद भी आएगी, कुछ भी अगर किसी को नींद लगे कभी भी उठ के कॉफी लेके आ सकते हो, वॉशरूम होके आ सकते हो, बगल वाले को बोल सकते हो 2 थप्पड़ मार मेरे को, उससे भी ठीक हो जाएगा। तो अपने लिए करना है, अपने लिए, ठीक है। सो लेट्स रिवाइज अगेन क्विकली। सो व्हाट इज ओवम? ओवम इज 0 to 2 weeks। व्हाट इज एम्ब्रियो? 3 to 8 weeks। What is fetus? 9 weeks till birth। What is early neonate? 0 to 7 days। Late neonate? 7 to 28 days of life। 28 दिन से 1 साल तक, from 28 days of life till 1 year, that is known as infant। उसको हम कहते हैं infant। 28 days of life till 1 year is known as infant। now आगे का कहानी क्या होता है? so please remember very beautiful something known as 1 to 3, 3 to 6 and 6 to 12। 1 to 3, 3 to 6 and 6 to 12। 1 से 3 साल का बच्चा, that is known as a toddler। 3 to 6 year baby is known as preschool, and 6 to 12 year is known as school going period। 3 से 6 प्री स्कूल बोलते हैं, 6 से 12 साल को स्कूल गोइंग बोलते हैं। ये बहुत ही कॉमन एग्जाम क्वेश्चंस हैं। मेरे एचओडी कहा करते थे कॉमन थिंग्स आर कॉमन एंड रेयर थिंग्स आर रेयर। माय एचओडी यूज्ड टू से कॉमन थिंग्स आर कॉमन एंड रेयर थिंग्स आर रेयर। सो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन विल बी कॉमनली इट विल बी कमिंग इन एग्जाम्स। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। सो से विद मी, व्हाट इज टॉडलर? टॉडलर इज 1 to 3 year। व्हाट इज प्री स्कूल? 3 to 6 year। व्हाट इज स्कूल गोइंग पीरियड? 6 to 12 year। फिर आता है एडोलेसेंट पीरियड, बच्चा बड़ा हो गया हमारा। एडोलेसेंट पीरियड इज डिवाइडेड इनटू अर्ली, मिडिल एंड लेट एडोलेसेंट पीरियड। एडोलेसेंट पीरियड 10 साल पे चालू होता है और 19 साल पे खत्म होता है। एडोलेसेंट पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम 10 year ऑफ लाइफ एंड फिनिशेस बाय 19 year ऑफ लाइफ। प्लीज रिमेंबर 10 to 13 year, 10 से 13 साल का बच्चा, 10 to 13 year is known as early adolescent period। 14 to 16 year is a middle adolescent period, and 17 to 19 year is a late adolescent period। 10 to 13, 14 to 16 and 17 to 19। जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, एग्जाम में क्वेश्चन आया था अर्ली नियोनेट, अर्ली एडोलेसेंट पीरियड और लेट एडोलेसेंट पीरियड पे क्वेश्चन आया था। सो व्हाट इज अर्ली एडोलेसेंट पीरियड? 10 to 13 year। late adolescent period 17 to 19 year। what is early neonatal period? 0 to 7 days। and late neonatal period 7 to 28 days। बहुत बढ़िया, मजेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the normal weight of a newborn? अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ जी, आपका बैठो, बैठ के बोलो, आपका नाम क्या है? नरेंद्र। डॉक्टर नरेंद्र सर, ये बताइए नॉर्मल वजन कितना होता है एक बच्चे का? ठीक है, बहुत बढ़िया, मजेदार जवाब। सो बिल्कुल सही जवाब है। जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, द न्यूबॉर्न बेबी, दैट्स राइट, ही इज फ्रॉम हिज नॉर्मल वेट इज 2.5 to 4 kg।
भारत में बच्चा नॉर्मली 2.5 किलो से 4 किलो का होता है। द नॉर्मल वेट ऑफ अ न्यूबॉर्न इज अराउंड 2.5 टू 4 kg। तो ये रेंज है। तो अगर 2.5 टू 4 kg इज द नॉर्मल वेट ऑफ अ न्यूबॉर्न, तो लेस देन 2.5 को क्या बोलेंगे? लेस देन 2.5 को बोलेंगे LBW। व्हाट इज LBW? लो बर्थ वेट। बहुत बढ़िया, लो बर्थ वेट। So less than 2.5 kg हो गया बेबी लो बर्थ वेट, and more than 4 kg, more than 4 kg को we usually call it like a macrosomic baby। बड़ा बच्चा, जैसे मोटा बच्चा, जैसे हम सब में है मोटा दिमाग, so ऐसे मोटा बच्चा मैक्रोसोमिक बेबी, और यू कैन से बिग बेबी। So macrosomic baby और big baby, it is nothing but more than 4 kg। समझ के पढ़ना, रटना कुछ नहीं है, डिस्कस, जितना डिस्कस करेंगे उतना याद रहेगा। So now tell me what is the normal weight of a newborn? 2.5 to 4 kg। What is low birth weight? Less than 2.5 kg, and more than 4 kg is a macrosomic baby, or also known as a big baby। So if you are the healthcare professional on duty, अगर आप नर्सिंग स्टाफ हैं ड्यूटी पे, एक बच्चा जो है डिलीवरी हुआ है 4.5 kg का है, आपका नाम क्या है? विपुल। सो विपुल सर, ये बताएं, अगर 4.5 किलो का बच्चा पैदा हो गया और पेरेंट्स कह रहे हैं डॉक्टर साहब हमें तो बताया था कि 2.5 एंड 4 इज द नॉर्मल वेट ऑफ अ न्यूबॉर्न, बट माय बेबी इज 4.5 kg, तो क्या करना चाहिए? शुड आई डिस्चार्ज द बेबी, और शुड आई सेंड सम ब्लड सैंपल ऑफ द बेबी? क्या करना चाहिए? ओके, सर ने कहा कि वी शुड सेंड सम ब्लड सैंपल ऑफ द बेबी। व्हाट प्रॉब्लम यू कैन थिंक ऑफ? मेरे बच्चे का वजन इतना भारी है क्यों? ये क्या, व्हाट इज द कॉमनेस्ट रीजन वी गेट ऑफ अ बेबी मोर देन 4 kg? क्या लगता है सर आपको? हाँ, so very good, one of the very important points, we have something known as infant of diabetic mother। अगर मम्मी डायबिटिक है तो बच्चा हमेशा भारी होगा। तो यस, हम सैंपल बच्चे का भेज सकते हैं, बात सही है। सैंपल क्यों भेजेंगे? बेसिकली आप क्या रूल आउट करना चाह रहे हो? इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर, ठीक है। तो से अगेन अगेन, अगर बच्चा 4 किलो से ऊपर का है तो बच्चे को क्या, बच्चा वो क्या हो सकता है? इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर। वो इन्फेंट हो सकता है एक डायबिटिक मदर का, ठीक है। अब बहुत अच्छा, और कोई कारण मैडम, और कोई रीजन हो सकता है बच्चे का 4 किलो से ऊपर होने का? एनी अदर रीजन? क्या हम कह सकते हैं अगर मम्मी मोटी है तो बच्चा मोटा होगा? यस और नो? अगर माँ बड़ी सूखी हुई है तो बच्चा बड़ा सूखा हुआ होगा? इफ द मदर इज एनीमिक, if the mother is malnourished, the baby will be a low birth weight baby। If the mother is obese, the baby will be obese। So I'll repeat again, in this class I've got an idea that the two reasons for baby more than 4 kg, number one will be infant of diabetic mother, and the second reason will be maternal obesity। Maternal obesity। Acha, what is low birth weight? The cutoff is less than 2.5 kg। Macrosomic, the cutoff is more than 4 kg। Acha, what is late neonatal period? 7 to 28 days, and late adolescent period 17 to 19 year of life। बहुत बढ़िया। एनएल एकेडमी में मैंने एडमिशन 21 अक्टूबर को लिया था। 21 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट में क्लास लगी थी फार्मा की, जो डॉक्टर रंजन सर ने पढ़ाया था। फार्मा की क्लास डॉक्टर रंजन सर के द्वारा जो पढ़ाई है, एक नंबर, मतलब क्लास में जो भी डाउट हो आप क्लास में पहुंच सकते हो। कुछ भी समझ में नहीं आए सर बाद में भी आपको एक्सप्लेनेशन दे देंगे उस चीज का, आप सर के पास जा सकते हो। और सब्जेक्ट का अगर सर नहीं भी है तो सब्जेक्ट का भी जो एक्सपर्ट टीचर बाद में रहता है, जो आपके लिए जब तक एकेडमी ओपन रहती है तब तक अवेलेबल रहता है। उसके बाद जो बायोकेमिस्ट्री क्लास स्टार्ट हुई, बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन की, वो डॉक्टर मिथिलेश मैम ने पढ़ाया। वो भी बहुत अच्छा पढ़ाया डॉक्टर मिथिलेश मैम ने। और मतलब हर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे जो स्पेशल टीचर हैं, जो अच्छे लेवल, मतलब बहुत लेवल के डॉक्टर हैं, अच्छे स्पेशलिस्ट हैं, आप लोग जानते होंगे, जैसे साक्षी अरोरा में मिडवाइफरी की स्पेशलिस्ट हैं, और पीडिया के जो डॉक्टर आनंद सर पढ़ाते हैं। मतलब सभी सब्जेक्ट के जो टीचर हैं वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हमें अच्छा समझ में आ रहा है, हर चीज का सोल्यूशन तुरंत मिल जाता है। एकेडमी में यहाँ पर जैसे कि आपको क्लास खत्म हो गई है 5 बजे, उसके बाद आपके लिए लाइब्रेरी अवेलेबल है, तो आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हो। और हर वीक में आपका एक सीबीटी टेस्ट होता है, तो सीबीटी टेस्ट के लिए अलग से लैब है, सीबीटी लैब, और स्मार्ट ट्रेडिंग रूम है। आपको यहाँ कैंटीन की व्यवस्था भी है। मतलब हर चीज का जो सिस्टम वाइज जो चीजें होनी चाहिए, उस सिस्टम वाइज सब चीजें यहाँ पे उपलब्ध है।
और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। सब अच्छे मतलब अच्छे से पढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ जो भी डाउट होता है सब एक दूसरे से कोरिलेट मतलब बात करके उसको क्लियर कर लेते हैं। बाकी और भी टीचर सब चीज़ों में मदद करते हैं हमारे। थैंक यू। First of all, thank you for giving me this opportunity. I am Smriti Mehta from Karachi, Jharkhand, and I'm here to share my experience regarding my academy. मेरे फ्रेंड फोर्थ ईयर में यहाँ ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, मीन्स मेरा जूनियर वही रेफर किए थे कि एकेडमी के बारे में कि एनएनएल बेस्ट है, वो वहाँ सारे डॉक्टर्स लोग पढ़ाते हैं। उस टाइम उनको उतना बारे में पता नहीं था, फिर मेरा फ्रेंड बताया कि यहाँ सारे डॉक्टर्स है, गायनिकोलॉजिस्ट मैम डॉक्टर साक्षी मैम, डॉक्टर आनंद सर, फिर डॉक्टर रंजन सर। तो फिर हम भी इसके बारे में उस टाइम पता चला एनएनएल के, तो फिर डिटेल्स में यूट्यूब में सर्च किए, सारा कुछ ऐसे पता चला। फिर कुछ कुछ क्लासेस लिए, तो मेरे जितने भी डॉट्स थे वो सब सारा क्लियर हुआ। तो ये चीज मीन्स बेस्ट लगा कि अभी तक मीन्स कोई भी इंस्टीट्यूट में ऐसे डॉक्टर्स लोग इतने डिटेल्स में नहीं पढ़ा रहे जितने एकेडमी वाले लोग हम लोग को पढ़ा रहे हैं। यहाँ ज्वाइनिंग जब ऑफलाइन ज्वाइन किए तो उस टाइम मीन्स अपना लेवल पता चला। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मीन्स मेरा लेवल कहाँ है, वो जो जब हम लोग ऐसे ऑनलाइन करते हैं तो उस टाइम पता नहीं चलता है कि हाँ हमारा लेवल कहाँ है। जब ऑफलाइन आए इतने सारे स्टूडेंट्स में खुद का लेवल पता चला कि हाँ हम किस लेवल में हैं। और जो टीचर्स है, जो फैकल्टी है, वो तो यहाँ के बेस्ट है। वो कोई भी इंस्टीट्यूट में ऐसे फैकल्टी नहीं मिलेंगे। यहाँ सारे डॉक्टर्स क्लासेस लेते हैं और जो भी हम लोग का डॉट्स रहता है, कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से थ्योरी हम लोग का क्लियर कराते हैं। फर्स्ट डे तो मेरा क्लास था, फर्स्ट डे हम लोग का फार्माकोलॉजी था। फार्माकोलॉजी कितना बोरिंग सब्जेक्ट है, वो नाम से ही फार्मा का नींद आता है सुनकर कि फार्मा पढ़ना है। पर फार्मा डॉक्टर रंजन सर बेस्ट टीचर बोलेंगे फार्माकोलॉजी का। वो इतना इजीली हम लोग को फार्मा पढ़ाए। एक सर का कोट भी है कि सारे भगवान जी यूं ही खुश हो जाते हैं, लेकिन भोले बाबा का सबसे ज्यादा तपस्या करना पड़ता है उनको खुश करने के लिए। सेम है फार्मा, सारा सब्जेक्ट बहुत इजी है, लेकिन फार्मा को अगर जानना है तो फार्माकोलॉजी को हम लोग को बार बार प्रैक्टिस करना होगा। पर सर हम लोग को फर्स्ट डे ही मीन्स जो सर जो थ्योरी पढ़ाए वो इतने अच्छे से क्लियर किए कि 2-3 बार कोई स्टूडेंट्स रिवीजन करेगा तो फार्माकोलॉजी पूरा उसको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फेवरेट तो सारे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक सिंगल टीचर फेवरेट है। यहाँ सारे फैकल्टी जितने भी है, सब्जेक्ट एक्सपर्टीज सारे अपने में ही फेवरेट है। एक से एक सारे टीचर्स है हर सब्जेक्ट के लिए, मीन्स सब बेस्ट है सारे टीचर, चाहे रंजन सर हो, डॉक्टर आनंद सर हो, मैम हो, सारे टीचर सारे बेस्ट है। वो जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे अच्छे से क्लियर कराते हैं थ्योरी। कोई भी प्रॉब्लम हो उनसे जाकर डायरेक्टली बात करो। फिर मैम सबीना मैम है, सबीना मैम भी वीकेंड में 2 टीचर आते हैं, मैम सबीना मैम और डॉक्टर आनंद सर। दोनों में जो भी तुम्हारे डॉट्स है वीकली वो मैम लोग क्लियर कराती हैं। फिर मार्गदर्शक भी है। मार्गदर्शक में अगर थोड़े भी ऐसे लो फील कर रहे हो, कहीं भी प्रिपरेशन में ऐसा लो फील हो रहा है, तो मार्गदर्शक है, 2 मार्गदर्शक है, उनसे जाकर आप अपना जो भी प्रॉब्लम है, जो इश्यूज है वो बात करो। फिर मैम ऐसे हेल्प करेंगे कैसे पढ़ना है, वो स्टडी का एक स्ट्रैटेजीज बताती हैं कि हाँ ऐसे ऐसे प्रिपरेशन करना है, 9 सेट के लिए इतना टाइम देना है, ऐसे पढ़ना है, वो मैम लोग हेल्प करती हैं। फिर और एक चीज बेस्ट है यहाँ की, कोई भी एकेडमी में रिलेशनशिप मैनेजर नहीं है। मीन्स आपको अगर कुछ प्रॉब्लम भी होता है तो आप डायरेक्टली अपने बात को डायरेक्टर सर तक नहीं ले जा सकते हो, या फिर एकेडमी आप नहीं जा सकते हो, आपको टीचर मीन्स ऐसे जाकर रिसेप्शन में बात करना होगा। बट यहाँ बेस्ट चीज है कि सारे स्टूडेंट्स की एक रिलेशनशिप मैनेजर है कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो वो आपके लिए खड़े हैं। मेरा रिलेशनशिप मैनेजर मनीषा मैम है। मीन्स आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है वो डेली आपसे पूछ रही है कि आपको रहने में प्रॉब्लम है, या फिर कुछ भी स्टडीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, हर कुछ मैम लोग सॉल्व करने के लिए मीन्स बैठे हैं, सारे कुछ वो लोग हेल्प करते हैं। और एकेडमी का बेस्ट चीज ये लगा कि हम लोग को यहाँ सीबीटी लैब भी प्रोवाइड किया गया है। सीबीटी लैब मीन्स जैसे नॉर्थ सेट में होता है ना कि हाँ फर्स्ट टाइम अगर कोई कंप्यूटर बेस्ड ऐसे टेस्ट दे रहा है तो बहुत स्टूडेंट को फेयर रहता है, वो तो पहले टेस्ट देने से पहले ही डर जाएंगे कि फर्स्ट टाइम कंप्यूटर में कर रहे हैं। बट यहाँ बेस्ट चीज एकेडमी का है कि वो हम लोग को सीबीटी लैब प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो जो फेयर है ना एग्जाम से पहले वाला,
वो हम लोग का इधर खत्म हो जाएगा, क्योंकि मंथली हम लोग का सीबीटी होगा और पर डे हम लोग का टैट कंडक्ट होता है। टैट दैट मीन्स टॉपिक असेसमेंट टेस्ट, जो हम लोग पर डे पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी स्टडी हो रहा है, नेक्स्ट डे हम लोग आकर इधर टेस्ट देते हैं। उससे अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हो कि आपका लेवल कहाँ है, आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। वो चीज एकेडमी का बेस्ट है कि ये लोग टैट करवा रहे कंडक्ट, सब्जेक्ट असेसमेंट टेस्ट होगा, सीबीटी होगा। उससे आपको आपका जो भी है ना, मीन्स आप में जो भी लूप, जो भी फॉल्स है, वो सब सारा आपको पता चलेगा कि हाँ आपका प्रॉब्लम किधर है। और एकेडमी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बेस्ट है। आप बिना ऐसे मीन्स, एक होता है ना कि हाँ आप इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ रहे हो, आपको पूरा ऐसा फील होगा कि ऐसे आप क्या बोलते हैं, नर्सिंग का जो 4th ईयर किए हो ना, ऐसे स्ट्रिक्ट पूरा सेम उसी तरह आपका सारा जो भी टेस्ट का मार्क्स है सारा पेरेंट्स के पास जाता है। आप एब्सेंट कर रहे हो वो भी सारा डिटेल्स आपका पेरेंट्स के पास जाएगा, या कितने दिन आए हो नहीं आए हो, सारा आपको पेरेंट्स को रिकॉर्ड जाएगा। तो फिर वो है ना कि ऐसे इधर इतना दूर आके आप मस्ती करो, ये सब नहीं चलेगा। वो सारे आपका एकेडमी वाले लोग उसमें भी आपका नजर रख रहे हैं कि कैसे स्टूडेंट का प्रिपरेशन चल रहा है। और बेस्ट चीज ये है एकेडमी की कि वो पर्सनल हर एक सिंगल स्टूडेंट पे ध्यान दे रहे हैं कि स्टूडेंट का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। और हम तो ये बोलेंगे कि एक बार जरूर सबको ऐसे ऑफलाइन लेना चाहिए, क्योंकि जो जो ऑनलाइन का है ना, ऑनलाइन में हम लोग को वो जो कंपटीशन का जो रहता है ना वो पता नहीं चलता है, बट ऑफलाइन आकर पता चलता है कि कितना कंपटीशन है, आप में कितना पोटेंशियल है, सामने वाला क्या है, वो आपको आकर ऑफलाइन पता चलता है। और एक बार सबको ऐसा ऑफलाइन आकर ट्राई भी करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, व्हाट इज द एवरेज इंडियन बेबी वेट? मोटा मोटा एक नंबर बोले, 3 किलो। भारत में जो बच्चा है, मोटा मोटा बोले तो भारत में बच्चा मोटा मोटा 3 किलो का होता है। द एवरेज इंडियन बेबी वेट विल बी 3 kg एंड द नॉर्मल वेट विल बी 2.5 to 4 kg. Next question. So whatever we are reading for the first and last time. अपने दिमाग को बार बार ये बोलो, ये बस पहली और आखिरी बार है, कोई रिवीजन नहीं, कुछ नहीं, ये बस ये पहली और आखिरी बार पढ़ रहे हैं। That's what you need to think in your brains. Okay? नहीं नहीं, कल फिर रिवाइज करेंगे बैठ के इसको। तो अगर ऐसा सोचेंगे तो फिर अभी आधा आधा ही याद रहेगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ नियोनेटल मोर्टेलिटी इन इंडिया? वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। यस, वेरी गुड। तो भारत में मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज, एमसीसी का मतलब होता है मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ नियोनेटल मोर्टेलिटी इन इंडिया। नियोनेट्स जो हैं भारत में क्यों मर रहे हैं? एंड ऑल्सो द सेम वन मोर पॉइंट वी हैव इज मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ U5MR। भैया हाँ, अंडर, हाँ भैया ये हिल रहा है, एक बार आना, ये दोबारा ऐसे हो गया, इसको कौन सा बटन दबाऊं मैं? हाँ हो गया, ठीक हो गया। ओके, सो या U5MR, व्हाट इज U5MR? अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। यस, तो कोई आइडिया क्या कारण है भारत में बच्चों के मरने का? समवन वेरी वेरी राइटली सेड, समथिंग नोन एज प्रीमेच्योरिटी। जितना ज्यादा बच्चा प्रीमेच्योर होगा उतना उसके मरने के चांसेस ज्यादा है। I'll repeat again. The most commonest cause of newborns dying in India, the mnemonic is Punjab National Bank. PNB is Punjab National Bank. The three important causes are: number one, P for prematurity, N for neonatal infections, and B for birth asphyxia. बी फॉर बर्थ एस्फिक्सिया। तीनों जो बीमारियां हैं ये न्यूबॉर्न बेबी की ही प्रॉब्लम है। ऑल दीज थ्री प्रॉब्लम्स आर द नियोनेटल प्रॉब्लम्स। तो मेरे साथ बोलें, द थ्री इंपॉर्टेंट कॉजेज आर: नंबर वन इज प्रीमेच्योरिटी, देन नियोनेटल इन्फेक्शंस एंड बर्थ एस्फिक्सिया। वेरी गुड। तो जितना ज्यादा बच्चा प्रीमेच्योर होगा उसके एक्सपायर होने के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं? सर क्यों बढ़ जाते हैं? बैठ के बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया, सर ने सही बोला कि बच्चे के लंग्स जो हैं मैच्योर नहीं हो पाते। बिल्कुल सही बात है। तो जो प्री मैच्योर है, प्रीटर्म कितने हफ्ते से कम को प्रीटर्म बोलते हैं? रैंडमली व्हाट डू यू थिंक? लेस देन
वेरी गुड, लेस देन 37 वीक्स। अगर मम्मी प्रेग्नेंट है, द मदर इज प्रेग्नेंट, द बेबी शुड स्टे इन हर टमी फॉर 9 months 7 days, और आई कैन से बेसिकली मोर देन 37 वीकर प्रेगनेंसी विल बी अ टर्म प्रेगनेंसी। अगर बच्चा माँ के पेट से लेस देन 37 वीक्स में बाहर आ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्री टर्म या फिर प्री मेच्योर बोलेंगे। और जैसे कि सर ने बिल्कुल सही बोला, व्हाई अ प्रीमेच्योर बेबी कैन एक्सपायर, बिकॉज हिज लंग्स आर नॉट फॉर्म प्रॉपर्ली, लंग्स आर नॉट मेच्योर प्रॉपर्ली। But in the lungs, which component are we talking about? We're talking about surfactant. We are talking about surfactant. So basically, एग्जाम एंट्रेंस क्वेश्चन नंबर 1, सर्फेक्टेंट बनता कैसे है, कहां बनता है सर्फेक्टेंट? सो लंग्स में बनता है, बहुत सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सर्फेक्टेंट बेसिकली इट इज फॉर्म इन द लंग्स। पहली बात तो ये बात सच है, दिस इज राइट, सर्फेक्टेंट इज फॉर्म इन द लंग्स। नंबर 1, लंग्स में देयर इज समथिंग नोन एज न्यूमोसाइट्स एंड समथिंग नोन एज टाइप 2 pneumocytes. So this is the exam question. Surfactant is formed by type 2 pneumocytes of the lung. In the lung pathology, in the lung basically lungs के अंदर में type 1 type 2 नामक pneumocytes होते हैं, and surfactant is formed by type 2 pneumocytes of the lung. अच्छा, surfactant, now this is a very beautiful question. Surfactant पहले हमारे lungs में बनेगा, फिर एमनियोटिक फ्लूइड में जाएगा, और फिर दोबारा जैसे कि मैं सुसु करता हूं, दोबारा बच्चा सुसु को पिएगा तो सर्फेक्टेंट लंग्स में बनेगा, फिर एमनियोटिक फ्लूइड में जाएगा, और फिर दोबारा सर्फेक्टेंट लंग्स में वापस आएगा। तो दीज 3 MCQs यू शुड नो। व्हेन आर यू एक्सपेक्टिंग द सर्फेक्टेंट इन द लंग्स? सर्फेक्टेंट बेसिकली इन द लंग्स इट स्टार्ट्स टू फॉर्म बाय 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। Very important point. Surfactant is present in the lungs by 20 weeks of gestation, और फिर वो सर्फेक्टेंट कहाँ जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड में जाएगा। सो बाय 28 weeks of gestation, by 28 weeks of gestation, you are expecting the surfactant in the amniotic fluid, and again I will swallow the surfactant. So if I say the mature levels of surfactant, the mature levels of surfactant are seen in the lungs by 33 to 35 weeks. प्रॉपर मेच्योर लेवल्स जो होते हैं, प्रॉपर डेवलपमेंट वाले लेवल्स, तो वो भी दिखते हैं 33 to 35 वीक्स में। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन है। लेट्स रिवाइज अगेन। सो व्हेन आर यू एक्सपेक्टिंग द सर्फेक्टेंट इन द लंग्स? बाय 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। एंड व्हेन आर यू एक्सपेक्टिंग इन द एमनियोटिक फ्लूइड? 28 weeks, and mature levels in the lungs 33 to 35 weeks. Which is the most commonest cause of babies dying in India? Prematurity, then neonatal infections, then birth asphyxia. अच्छा, least common cause जो बच्चे मर रहे हैं, that is nothing but injury. The least commonest cause of neonatal, what you call mortality is because of neonatal injuries. इंजरीज की वजह से जो है बच्चे मर रहे हैं, दैट यू शुड नो। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा, कल हमने, मुझे याद है हमने डिस्कस किया था ये पॉइंट, यस्टरडे वी स्पोक अबाउट इट। इफ द मदर इज अ केस ऑफ पॉलीहाइड्रोमनियस, व्हिच प्रॉब्लम द बेबी कैन हैव? Tracheoesophageal fistula, because polyhydramnios means too much of liquor. Too much of liquor means too much of urine, means baby's kidney working very well, he's passing urine very well, but is not able to swallow the urine. And which is the most common swallowing problem? The answer is tracheoesophageal fistula. There is something known as TEF, so please write tracheoesophageal fistula. And if the mother is a case of oligohydramnios, which problem the baby can have? Renal agenesis. So oligohydramnios जो next page पे है, oligohydramnios, that is related to renal agenesis. If the mother is a case of oligohydramnios means decreased liquor. Decreased liquor means decreased urine production. And why there is decreased urine production? Because baby का kidney is not working properly. Okay, one more I will, अच्छा क्या कहते हैं भैया, किसी को बोल के ना एक्लेयर्स का पैकेट ले आना, एक टॉफीज का पैकेट, एक आधे घंटे में। अच्छा, सो अम्बिलिकल कॉर्ड हैज हाउ मेनी आर्टरी, हाउ मेनी वेन्स? 2 artery and 1 vein. If I have 1 artery 1 vein, what will you think of? Renal agenesis. बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया। अच्छा, now one more important point we must appreciate. Now this beautiful picture, we have an integrated way we'll study. This picture very importantly is nothing but tracheoesophageal fistula. Now exam entrance, अच्छा को अब समझ के पढ़ना है दिल से। There are 5 to 10 MCQs in this.
that I said if the mother is a case of polyhydramnios, the baby can have TEF. What's the full form of TEF? Tracheoesophageal fistula. Now it's a very beautiful picture. Tracheo. This is the tracheo. This is the tracheo. This is the esophagus. And what is this? This is the fistula. ये है abnormal connection. Trachea मतलब windpipe. Esophagus means food pipe. And between the windpipe and food pipe, there is abnormal connection. अगर abnormal connection हो गया तो बच्चा कैसा क्लिनिकल फीचर के साथ आएगा? सो सर, व्हाट डू यू थिंक मैडम? व्हाट डू यू थिंक द बेबी कैन हैव अ प्रॉब्लम? ठीक है, यस मैम इज राइट, द बेबी कैन हैव अ चोकिंग. और क्या होगा अगर फूड पाइप विंड पाइप को जोड़ेंगे? और क्या सिम्टम होगा बताइए? drooling of saliva. So most importantly, doctor, whenever I'm feeding my baby, whenever I am feeding my baby, so this is whenever I am feeding my baby, once she feeds her baby, that feed is basically going to the windpipe, to the trachea. कोई connection है, दूध तो जाएगा वहां पे. So once the feeding, the food, the milk basically go to trachea. If I put milk in your trachea, you will have a reflex, or you will have a regurg, or you will have a vomiting. So one of the important feature the patient will have is nothing but vomiting, vomiting, vomiting. So पहला तो clinical feature हो गया vomiting, or you can say the patient will have regurgitation of feed. Naturally, something is going to my trachea. I will have distress. I will have tachypnea. So this is how the MCQ will form. A newborn baby. On newborn baby, on further examination, the nursing staff found that the baby was having tachycardia, tachypnea, distress. Whatever the mother was feeding the baby was vomiting, vomiting, vomiting. और naturally, because जो भी sputum होता है normally हम swallow करते हैं, पर इस केस में हमारा food pipe और हमारा जो ये basically connection है ये missing है यहाँ पे. तो whatever sputum I should swallow, I will not be able to swallow that sputum. So I will have a drooling of saliva. I will have drooling of saliva. So this is the MCQ. A newborn baby with distress, tachypnea, drooling of saliva, vomiting, and the mother will have oligohydramnios or polyhydramnios. Polyhydramnios the mother will have. The best answer is tracheoesophageal fistula. Exam entrance question number 1. How many types of TEF? कितने types का होता है TEF? There are 5 types. Type A, B, C, D, E. There are 5 types of tracheoesophageal fistula. Exam entrance question number 1. What is the name of the classification? इस classification का एक नाम होता है, and the name of the classification is gross classification. The name of the classification is gross classification. If someone asks you, where do you see gross classification? The answer is TEF, number 1. Number 2, which is the most commonest type of TEF? The most commonest type of TEF, yes, remember the mnemonic. The mnemonic is CAD, CAD, CAD. The most commonest type of TEF is type C. The second most commonest type is type A, and the least common is the type D. The least common is the type D. ठीक है, ये सारे एग्जाम क्वेश्चंस हैं. इट इज मेडिसिन टॉपिक, एक्चुअली इज मेडिसिन प्लस पीडियाट्रिक्स, तो हम 2 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं. सो द मोस्ट कॉमनेस्ट टाइप ऑफ TEF इज टाइप C, फॉलोड बाय टाइप A, एंड द लीस्ट कॉमन इज टाइप D. अच्छा, रिकरेंट, अब देखो नेचुरली रिकरेंट निमोनिया और रिकरेंट वॉमिटिंग, रिकरेंट एस्पिरेशंस, in all the types you will see, but most commonly it is seen in the last wala, type E type. A, B, C, D, E. Type E को हम type H भी कहते हैं. Type E is also known as type H. That's a separate MCQ. In which type of TEF you will see recurrent aspirations or recurrent pneumonia? The answer is most commonly you see in type E or type H. So let's revise again. So how many types of TEF do we have? 5 types. What is the name of the classification of TEF? Gross classification. Gross classification. Very good. इस पेशेंट का अगर हम एक्सरे कराएंगे, ये जो बच्चा है, अगर तुम्हें लगा इसको TEF लग रहा है बोल के, you got a X-ray done. So naturally, very very important, if you get a X-ray done, so what will you appreciate? So normally, if you get a X-ray done over here, so if I put a nasogastric tube, if I put a, ये 4 टॉपिक्स कुछ नहीं होगा, पूरा पैकेट
पैकेट चाहिए, बोला पैकेट ले आएंगे, ठीक है। सो अगर हम नाक में ट्यूब डालेंगे, अगर हम इस बच्चे की नाक में ट्यूब डालेंगे तो क्या हो सकता है उस ट्यूब का? जब ये नाक पे ट्यूब डालेंगे तो ये ट्यूब ऐसे करके मुड़ जाएगी। whenever we put a nasogastric tube, एक ट्यूब हम फीडिंग ट्यूब या nasogastric tube and we'll put it naturally नीचे तो it can't go, so if I put it, it will cause coiling of the tube. And very very important, this picture, yes, very very important, you can appreciate this picture. Can we appreciate this coiling of the tube? तो ये वाला जो है ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। A newborn baby with distress, tachypnea, tachycardia, x-ray was done, image is in front of you, what is the diagnosis? So ये image दिखाती है coiling of nasogastric tube. Please write coiling of the nasogastric tube. That's the x-ray finding of tracheoesophageal fistula. That's it, done. So we'll revise again. So page number 1 is over. So let's have a very quick revision. So जितना हो सके याद करने का कोशिश करें, ओके और अगर जो अच्छा आंसर करेगा वो खाएगा एल्पेनलीबे और पल्स, ठीक है। So let's revise again. So if I ask you a very random question, तो सर ये बताएं पीडियाट्रिक्स का मतलब क्या होता है? ग्रीक मीनिंग क्या है पीडियाट्रिक्स का? पीडिया मीन्स चाइल्ड एंड याट्रिक्स मीन्स हीलर. What is pediatrics? Child healer. Very good. Next question, sir. ये बताइए ovum क्या होता है? Ovum. How many weeks? Yes, 0 to 2 weeks is known as ovum और 3 to 8 weeks क्या था? क्या बोलते हैं उसको? Embryo. 3 to 8 weeks is known as embryo. And what is fetus? 9 weeks till birth. 9 weeks till birth is known as fetus. What is perinatal period? 22 weeks of gestation to 7 days after birth. Very good, that's right. What is low birth weight? Less than how much kg? Less than 2.5 kg is low birth weight. When are you expecting the surfactant in the amniotic fluid? By how many weeks? By 28 weeks. And when are you expecting the surfactant in the lungs? 20 weeks. Amniotic fluid 28 weeks. And mature levels in the lungs 33 to 35 weeks. Very good. What is the name of the classification for tracheoesophageal fistula? Gross classification. Very good. How many types of TEF do we know? 5 types. Most common कौन सा होता है? Type C followed by A and the least common is type D. Very good. अच्छा, if I ask you a very common question, ये जो 5 types का है, which one will have a no gas in the abdomen? अगर गलती से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ये फोटो आ जाएगी और पूछेंगे यस नो गैस इन द एब्डोमेन, क्या होगा इसका आंसर? ओके ए, वेरी गुड। तो एक होता है नो गैस इन द एब्डोमेन एंड वन विल बी गैस इन द एब्डोमेन। तो गैस इन द एब्डोमेन का कनेक्शन मतलब कहां से होना चाहिए कनेक्शन? इफ देयर इज अ कनेक्शन ऑफ माय विंड पाइप to my tummy, so there you will have a gas in the abdomen. हवा जो है पेट में नजर आएगी। तो जहां जहां पे कनेक्शन होगा, जहां जहां पे कनेक्शन होगा, you will have a gas in the abdomen. So in which type do you see gas in the abdomen? So type C, D and E. Whereas in type B एंड टाइप ए दोनों में अगर हम देख सकते हैं देयर इज नो कनेक्शन ऑफ द विंड पाइप एंड द टमी, सो द पेशेंट विल हैव नो गैस इन द एब्डोमेन। द इन टाइप ए एंड टाइप, ये सब एग्जाम क्वेश्चन है। इन टाइप ए एंड टाइप बी नो गैस इन द एब्डोमेन, सी डी ई गैस इन द एब्डोमेन। वन मोर वेरी रेयर क्वेश्चन दे आस्क कि जो आपने बताया है टाइप सी जो बहुत कॉमन है, टाइप सी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइप सी? देखो सी मतलब ये वाला सी, दिस इज द सी वी आर टॉकिंग अबाउट। इफ दिस इज द सी वी आर टॉकिंग अबाउट, इसका मतलब है जो आपकी वर्कबुक में लिखा हुआ है, इट इज प्रॉक्सिमल ईसोफेजियल एट्रेजिया। और प्रॉब्लम कहां पे है? डिस्टल। द प्रॉब्लम इज इन द डिस्टल एरिया। So the meaning of type C is proximal esophageal atresia and distal TF. तो अपनी गंदी जबान से बोलें टाइप सी का मतलब क्या होता है? proximal esophageal atresia and distal TF. बहुत बढ़िया, ठीक है। तो फर्स्ट पेज हो गया, सेकंड पेज चलते हैं। ओके, वर्कबुक मेरे पास भी होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, डन। ओके, इट्स हाफ एन आवर ओवर, सो लेट्स हैव 1 मिनट ब्रेक। 1 मिनट के लिए सांस लो। हर आधे घंटे बाद 1 मिनट का ब्रेक होगा, ठीक है। जस्ट रिलैक्स फॉर 1 मिनट, विल स्टार्ट इन 1 मिनट। हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद फैजान है और मैं झालावाड़ से हूँ।
देन मैंने अपनी एकेडमी कोटा से की है और फिर मुझे नोटसेट की प्रिपरेशन करना थी, तो मुझे एनएनएल के बारे में पता चला टारगेट हाई के थ्रू। मेरे पास टारगेट हाई था, तो टारगेट हाई के थ्रू मुझे एनएनएल के बारे में पता चला। मैं पहले प्लान सी ज्वाइन किया, देन फिर मैं प्लान सी ज्वाइन करके मुझे पता चला कि जो है अभी एकेडमी ओपन होने वाला है ऑफलाइन। तो फिर मैं अपनी रिलेशनशिप मैनेजर को मैं कांटेक्ट किया, वो मुझे एक नंबर प्रोवाइड की नारायण सर का। तो नारायण सर के थ्रू मुझे एकेडमी के बारे में फुल डिटेल पता चली। फिर मैं यहाँ पर मैंने एडमिशन लिया। एडमिशन मेरा नारायण सर के थ्रू हुआ था, उन्होंने काफ़ी अच्छे से मुझे ट्रीट किया। नारायण सर ने मुझे पूरा एकेडमी दिखाया, देन फिर उसके बाद मुझे पूरा प्रोसेस समझाया, इस तरह से जो एडमिशन लेना है। फिर मैं एडमिशन लिया और यहाँ पर आया। यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत बेटर फील हुआ। ये मेरा नोटसेट पहला है, मैं पहले से पहले नोटसेट कभी नहीं दिया हूँ, बट यहाँ पर मैं जब आया तो मुझे सीबीटी लैब मिला, और सीबीटी लैब सेम वैसा ही है जैसे नोटसेट में होता है। बच्चों के थ्रू मुझे पता चला, जो पहले एग्जाम दे चुके हैं, उन्होंने बताया कि सेम वैसे ही फीलिंग सीबीटी लैब में आई थी जैसे रियल एग्जाम सेंटर में आती है। तो मुझे भी वैसा ही लगा, काफी अच्छा टेस्ट हुआ था। लग रहा था कि हाँ, हम वैसे ही पेपर दे रहे हैं जैसे नोटसेट में देते हैं। देन यहाँ पर बहुत अच्छी फैकल्टीज है। यहाँ पर हर सब्जेक्ट के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल है। फार्मा के लिए डॉक्टर रंजन है, देन फिर ओबीजी के लिए गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर साक्षी अरोड़ा मैम है, और हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट यहाँ पे अवेलेबल है। पहले मॉर्निंग में जब आते हैं तो टेस्ट होता है, वो टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बहुत ज़्यादा जो है उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती है हमारी। जो भी हमने कल क्लास ली है वो क्लास हम आएंगे, पहले उसका टेस्ट होगा 30 क्वेश्चन का, हम वो टेस्ट देंगे। फिर टेस्ट होने के बाद हमारी क्लास होगी, और क्लास के बाद जो भी कुछ हमारे डाउट रह जाते हैं वो हम सब्जेक्ट एक्सपर्ट के थ्रू हमारे डाउट क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर शबीना मैम भी अवेलेबल होती है, डॉक्टर आनंद सर भी अवेलेबल होते हैं। मतलब हफ्ते में एक दिन आनंद सर का सेशन होता है जिसमें आप डॉक्टर आनंद सर से मिल सकते हैं, और हमारे जो भी डाउट होते हैं हमारे लिए मार्गदर्शन है। कभी कोई लो फील होता है तो हम हमारे मार्गदर्शन से मिल सकते हैं, और मार्गदर्शन से मिलकर हम हमारी जो है सारी फीलिंग शेयर कर सकते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम नहीं आ रही है। रिलेशनशिप हमारी मनीषा मैम है, जो हमारी कुछ भी अगर क्वेरी होती है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम सब कुछ जाकर डिस्कस मनीषा मैम से कर देते हैं। फिर मनीषा मैम हमारी क्वेरी को आगे पहुंचा देती है, और हमारी जो है प्रॉब्लम वो सोल्व हो जाती है। हमें वेलकम किट में जो है बैग मिला, देन आईडी कार्ड मिला है, टी शर्ट मिली है, और उसके प्रैक्टिस करने के लिए हमें मास्टर स्ट्रोक मिले हैं जो काफी अच्छे हैं। अभी मैं एक बार क्वेश्चन किया हूँ तो ठीक क्वेश्चन है, उसमें जो है हर सेक्शन अलग बनाए हुए हैं। पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन आ चुके हैं उसका सेक्शन अलग है, जो क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन जो होते हैं उनका सेक्शन अलग बनाया है। और मास्टर एक्सपर्ट ने जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट और मास्टर एक्सपर्ट, हमारे जो मास्टरमाइंड फैकल्टी है, उन्होंने अलग से एक सेक्शन बनाया है जिसमें न्यू क्वेश्चन ऐड किए हैं रेशनल के साथ, तो आप उनसे अपनी प्रैक्टिस को प्रिपेयर कर सकते हैं। और क्लास से बहुत अच्छी होती है, ठीक होती है। डॉक्टर रंजन सर की क्लास हुई है फार्मा की, काफी अच्छी क्लास हुई है। और हमें उसमें कुछ डाउट था तो हम हमारे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे प्रियदर्शनी मैम, हम उनसे जो है जाकर मिल सकते हैं। जो टेस्ट जो होता है, सुबह जो टेस्ट होता है उसका डिस्कशन हम जो टेस्ट, एक को इसमें बहुत अच्छी चीज मुझे लगी टेस्ट डिस्कशन वाली। जो टेस्ट होता है हम रेशनल पढ़ते हैं, कुछ सम चीजें समझ में आ जाती है, कुछ चीजें समझ में नहीं आती है। कुछ बच्चे होते हैं जो डायरेक्टली जाकर पूछ लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं पूछ पाते हैं। तो उसके लिए जो टेस्ट डिस्कशन होता है, आधा घंटे का 30 मिनट का सेशन होता है, जिसमें सारे जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस जितने भी टेस्ट हुए हैं, एक टेस्ट 2 टेस्ट, उसका टोटल वो एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। देन एकेडमी का स्ट्रक्चर तो बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छा है। जो है सिक्योरिटी के तौर पर बहुत अच्छा है, अटेंडेंस डेली होती है। देन आपकी सिक्योरिटी के लिए आई कार्ड जो दिया है आपको, उसी से ही एंट्री मिलती है, बगैर टी शर्ट के आप अंदर नहीं आ सकते। देन लंच होता है जिसमें बीच बीच में, जो इतनी लंबी क्लास होती है उसमें बीच बीच में आपको ब्रेक भी मिल जाता है ताकि थोड़ा सा रिलैक्स फील हो। अभी तो मेरे लिए मेरी फीलिंग बहुत ठीक है। अभी आगे मेजर सब्जेक्ट आने वाले हैं, उसमें देखते हैं और ज्यादा बेटर होगा, इम्प्रूव होगा। अभी धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगा है। तो मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने अकॉर्डिंग देखें, और सब्जेक्ट जो यहाँ रिलेशनशिप मैनेजर है उनसे कांटेक्ट करें, उनसे पूरी डिटेल लें, और आप भी कोशिश करें कि यहाँ एकेडमी ज्वाइन करें। एकेडमी बहुत अच्छी है, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो है एकेडमी को ज्वाइन करें, और नोटसेट